Good morning, students. Today we will study about the topic pedigree analysis. Pedigree analysis is a new concept for you, so understand it properly because it is very important part for your NEET preparation as well as for your examination point of view. So let us begin with the definition of pedigree analysis. The study of inheritance of genetic trait in several generations of human family in the form of family tree diagram. This study is termed as pedigree analysis. If I explain this in the simpler terms, it means that by taking the help of the family tree diagram of the human family, when we study the genetic traits, that how they are moving from one generation to another generation. So that study of inheritance, it is pedigree analysis. Now the question arises over here that what is the importance of pedigree analysis? Now, if pedigree analysis is performed, it will help in the genetic counseling to avoid the disorder in the future generation. Suppose करिए कि आपकी फैमिली ट्री में जब उसको स्टडी किया गया तो एक जनरेशन या दो जनरेशन में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व हो रहा है, ओके तो हम उसको जेनेटिक काउंसिल कर सकते हैं, यानी जो डॉक्टर्स होते हैं दे कैन जेनेटिकली काउंसिल दी फैमिली मेम्बर्स सो दैट कि वो जो डिसऑर्डर है वो रिजॉल्व हो सके, नेक्स्ट जनरेशन में मूव ऑन ना कर सके. ओके, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वेदर द ट्रेट इज़ डोमिनेंट और रिसेसिव, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड. पेडिग्री चार्ट को देखकर हम इजीली पता लगा सकते हैं कि जो ट्रेट है जो फैमिली में इनहेरिट हो रहा है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है. ये हम डिपिक्ट कर सकते हैं बाय जस्ट वॉचिंग द पेडिग्री चार्ट ऑफ द फैमिली. नाउ the pedigree analysis, it predicts the harmful effect of marriage between the close relatives. अब अगर क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होती है, आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म में सेम गोत्र में भी शादी नहीं होती. गोत्र मीन्स दे आर हैविंग द सेम काइंड ऑफ जेनेटिक कंटेंट. ओके, तो क्यों ऐसा बोला जाता है? इट इज़ हैविंग द साइंटिफिक logic behind that, because if the marriage is between the close relatives then there will be no variation. कोई भी next generation में variation नहीं आएगी and it will lead to many of the harmful effect. जो next generation होगी अगर उसमें नई genes add up नहीं होंगी, वही genes accumulate हो जाएंगी, तो IQ level next generation का इतना ज़्यादा नहीं होता. ओके, उनमें बहुत सारे डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कोई भी नई वेरिएशन नहीं आ सकती. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ हार्मफुल. नाउ इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मेडिकल रिसर्च. ओके, अब जैसे हीमोफीलिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो हीमोफीलिया इट वाज फाउंड इन द क्वीन विक्टोरिया फैमिली. तो वहाँ पर मेडिकल रिसर्च के लिए भी पेडिग्री एनालिसिस कैन बी used. It helped to study the inheritance pattern of trait in the human. Pedigree chart से हम find out कर सकते हैं कि कैसे कोई trait human beings में एक generation से दूसरी generation में move on कर रहा है. Even it shows the origin of trait and flow of trait in family. Pedigree chart से हमें idea लगता है, हमें पता लगता है कि कौन सा जो ट्रेट है कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. अगर अफेक्टेड ट्रेट है तो वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और किस फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फ्लो कर रहा है. इज़ दैट क्लियर? सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. नाउ कम टू द symbols which are used in the pedigree analysis. The first symbol, the square, it is representing male.
circle representing the female, and this kind of structure, it is representing the sex which is unspecified. Okay, we are not specified that whether the person is male or female. And if some individual is affected, like if male is affected, it will be in the form of shaded square. If female is affected, it will be shaded circle. Okay, and if unspecified sex is there and it is affected, then it will again be shaded. Simple marriage or mating is shown by male by a line, then female. This is the symbol for showing the mating, or we can say marriage. Okay, now if the marriage is between the close relatives, then it is denoted by the double line. It is denoted by the double line. Now this diagram, this symbol, it is depicting that these are the parents and these are the children. And if we talk about the order of birth, we will move from left to right. Okay, this is the first child and this is the second child. Okay, now parent with the male child affected with the disease, these are the parents and they are having a child, a male child, because here the male is being shaded, so it means that male child is affected. Okay, this symbol will represent that 5 of the offsprings, they are unaffected. So these are the different symbols which we will use in the pedigree chart. Now we come to the rules. These are very simple rules by which you can just get the idea about the pedigree chart in few minutes. Now, how can you say that the character which is being transferred from one generation to another is dominant? If that character is shown in all the generation, अगर वो character आपको सभी generations में दिखाई देता है, ओके, कोई भी generation missed नहीं होती, then that character is dominant. Next one, recessive. How can you say that character is recessive? When anyone, if it is missed, if that character is missed in one generation and shown in the next generation or other generation, अगर कोई करेक्टर किसी भी एक जनरेशन में या 2 जनरेशन में मिस्ड रहता है और फिर एकदम से शो हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, then we can say that trait or that character is recessive. Okay, I hope कि अब आपको डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफ्रेंशिएट करना पता लग जाएगा. अभी हम चार्ट्स पढ़ेंगे तो आपको और ईजिली ये टर्म्स समझ में आएंगी. नाउ ऑटोजोमल. ऑटोजोमल मीन्स दे आर रिलेटेड विद द ऑटोजोम्स. Okay, autosomes, they are common for male and female, so they will be found in both male as well as female. वो डिजीज़ेस जो मेल को भी इफ़ेक्ट करेंगे, फीमेल को भी अफेक्ट करेंगे, वो कौन से डिजीज़ेस हो जाएंगे? ऑटोसोमल डिजीज़ेस हो जाएंगे. एंड सेक्स लिंक डिजीज़ेस आर द डिजीज़ेस विच विल ओनली अफेक्ट द स्पेसिफिक सेक्स, वेदर मेल और फीमेल. ज़्यादातर जो सेक्स लिंक डिजीज़ेस होते हैं जो हमारे सिलेबस में हमने पढ़ने हैं, दे विल जनरली अफेक्ट द मेल्स ओनली. ओके, now we will move on to the examples. Let's begin with the first example. This is the male, this is the female. Okay, now male and female, they are producing the first generation. Affected male is produced and a female which is representing a normal female, like she is produced and she is married with the normal male, and the next generation which is produced is affected male. तो हमने ये कंडीशन कहीं ना कहीं पर पढ़ी है, हमने ये कंडीशन हीमोफीलिया में पढ़ी है. ओके, यानी हीमोफीलिया में क्या हुआ? नॉर्मल मेल व्हेन ही गेट मैरिड विद द कैरियर फीमेल, द फर्स्ट
male, he is the affected male is produced, okay, and she will be the carrier female. This carrier female will again when married with the normal male, again यही cross repeat हो गया, okay, again what will happen, affected male will be produced. So question over here is, tell us whether the disease is autosomal or recessive. अब आपको यहाँ पर दिख रहा है इस जनरेशन में कहीं पर भी कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं था, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, द डिजीज इज रिसेसिव, द डिजीज इज रिसेसिव. नाउ टेल वेदर इट इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड. अब यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ मेल्स दे आर अफेक्टेड, ओनली मेल्स दे आर अफेक्टेड, सो द डिजीज इज सेक्स लिंक्ड. यहाँ पर डोमिनेंट कर लीजिए, it was by mistake I have written the autosomal, okay. So this disease is sex linked recessive disease. ये हमें इसका inheritance pattern समझ में आया. Now move on to the next example. Here you will observe that the character is being passed on to the all generations. So this disease will be dominant. Now it is present in both the sexes, so this disease will be autosomal. Give example of the disease which shows such pattern of inheritance. ऐसा कौन सा डिजीज है जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा? Okay. It will not be the autosomal dominant, it will be sex linked character. सेक्स लिंक्ड क्यों बोला यहाँ पर हमने? देखिए यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड नज़र आ रही है, तो ये भी हमारे पास कौन सा केस होगा? दिस विल बी द केस ऑफ अगेन कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया. हाउ सो? दिस विल बी अफेक्टेड फीमेल and affected male, okay. What is produced? Carrier female, when it is crossed with the affected male, this condition is produced, okay. तो यहाँ पर ये क्या हो गया? सेक्स लिंक्ड करेक्टर आ गया, okay. So it will be sex linked, clear, not autosomal. नाउ गिव द एग्जाम्पल ऑफ दिस डिज़ीज़. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, यहाँ पर आप कलर ब्लाइंडनेस भी एग्जाम्पल दे सकते हो और हीमोफीलिया भी एग्जाम्पल दे सकते हो. आई होप ये क्रॉस आपको समझ आ गया. मैं दोबारा से बता रही हूँ ये क्रॉस. यहाँ पर देखिए, दिस फीमेल इज़ कैरियर फीमेल एंड दिस वन इज़ अफेक्टेड मेल. तो अब ये जो इंडिविजुअल बनी, ये क्या बनी हमारे पास? अफेक्टेड फीमेल बनी है. तो ये यहाँ पर क्या है? कैरियर की तरह काम कर रही है. तो ये क्या हो गया? सेक्स लिंक्ड डिजीज़ हो गया, ओके. वेयर दिस वन इज़ अफेक्टेड, बट जनरली यहाँ पर आप देख रहे हो मेल्स आर अफेक्टेड. ओनली रेयर केसेस देयर वेयर द फीमेल इज़ बीइंग अफेक्टेड. तो ऐसा केस हमें कहाँ मिलता है? या तो हीमोफीलिया में मिलेगा या फिर कलर ब्लाइंडनेस में मिलेगा. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सी दिस चार्ट. गिव द जीनोटाइप ऑफ 4th, 5th and 6th इंडिविजुअल. 4th, 5th, 6th इंडिविजुअल. अब सबसे पहले मुझे बताइए, ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है? यहाँ पर आप देख रहे हो पेरेंट्स में करेक्टर है नहीं, नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर आ गया, तो यहाँ से पता लग गया हमें इट विल बी रिसेसिव. अब सिर्फ मेल्स अफेक्टेड हैं, तो ये डिज़ीज़ क्या हो गया? सेक्स लिंक्ड हो गया, ओके. अब कौन सा ऐसा डिज़ीज़ है जो सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है? तो हम यहाँ पर अगेन आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, तो आपको ये क्रॉस बनाना है, ओके. अब यहाँ पर मेल अफेक्टेड है, तो आपने
क्या करना है, यहाँ पर 4th, 5th और 6th का जीनोटाइप बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखिए 4th वन, शी विल बी दी कैरियर, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में आपको मेल अफेक्टेड दिख रहा है, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा दैट शी विल बी कैरियर। ये आपको साफ तौर पर पता लग रहा है कि अफेक्टेड है, तो ये अफेक्टेड मेल हो गया। और ये आपको बिल्कुल साफ पता लग रहा है दैट दिस इज़ नॉर्मल मेल। तो तीनों का आप जीनोटाइप ईजिली फाइंड कर चुके हो। ओके, अब यहाँ पर इन्होंने एक और पार्ट पूछा है कि जो 14th है मेंबर है वो कैरियर है, यानी ये कैरियर फीमेल है, शी इज़ कैरियर फीमेल। ओके, या फिर आप यहाँ पर एच भी लिख सकते हो। एंड शी इज़ मैरिड विद अ नॉर्मल मैन, शी इज़ मैरिड विद नॉर्मल मैन। तो नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड मेल के कितने प्रोबेबिलिटी है? ओके, तो यहाँ पर सिंपल आपको क्रॉस बनाना है XHX और XY में। तो आपके पास क्या क्या जीनोटाइप्स बनेंगे? XHX, XHY, XX एंड XY। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी क्या है अफेक्टेड मेल की, 1/4 और यू कैन से 25%. Okay, now move on to the next example, that is just again watch the diagram, the family tree, and observe it and tell whether the trait is sex linked or autosomal. As all the individuals they are affected, it is autosomal and it is recessive, because यहाँ पर करेक्टर मिसिंग है, एक जनरेशन में करेक्टर नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन में एकदम से शो हो गया, मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है. ओके, सो दैट विल बी दी recessive character. So disease will be autosomal recessive. Now see the next example. This is given in your NCERT book also, and this is example of autosomal dominant. Autosomal क्यों है? Both the sexes they are affected. Okay, and all the generations they are having the disease. अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर शो नहीं हो रहा डिजीज़. ठीक है, यहाँ पर बच्चे इनकी इस जनरेशन में भी तो डिज़ीज़ नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा. ओके, जहाँ पर एक जगह पर है वहाँ से नेक्स्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, तो हर एक जनरेशन आप देख रहे हो अफेक्टेड है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ डोमिनेंट, एंड एज इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ द सेक्सेस इट इज़ ऑटोजोमल. सो ऐसा कोई डिज़ीज़ जो ऑटोजोमल डोमिनेंट होता है दैट इज़ मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. Okay, now come to the next example, that is again it is given in your NCERT. Now see, इस जनरेशन में डिज़ीज़ नहीं है, अगली जनरेशन में आ गया, उससे नेक्स्ट में भी शोन है. तो दिस काइंड ऑफ डिज़ीज़ इट इज़ रिसेसिव डिज़ीज़, and as both the sexes they are affected, that is why it is autosomal. तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि name the autosomal recessive disease, your answer will be sickle cell anemia. Now अभी तक हमने मैक्सिमम जितने एग्जाम्पल्स पढ़े वो सेक्स लिंक्ड के पढ़े थे, तो अब हम जो एग्जाम्पल करने वाले हैं वो ऑटोजोमल डिज़ीज़ का है. आपके पास ये पेडिग्री चार्ट गिवन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेदर दिस डिजीज़ इज़ रिसेसिव और डोमिनेंट. तो आप देख रहे हो यहाँ पर करेक्टर शो नहीं हो रहा, नेक्स्ट जनरेशन्स में शो हो रहा है. सो इट विल बी रिसेसिव. ओके, बोथ द सेक्सेस दे आर अफेक्टेड, दैट्स वाई इट इज़ ऑटोजोमल डिजीज़. अब पूछा गया है फाइंड द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट एज वेल एज थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड. अब पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है.
फर्स्ट जनरेशन, अब हमें ये तो पता लग गया कि ये जो डिजीज़ है ये रिसेसिव है. ओके, दिस डिजीज़ इज़ ऑटोसोमल एंड रिसेसिव. ओके, तो यानी जो अफेक्टेड पर्सन होगा वो क्या होगा, वो रिसेसिव ट्रेट दिखाएगा, यानी स्मॉल ए दिखाएगा. अब जब यहाँ पर स्मॉल ए आया है, ठीक है, तो आपको बताना है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है. अब पेरेंट्स का जीनोटाइप कैपिटल ए तो नहीं हो सकता, कैपिटल ए स्मॉल ए भी नहीं हो सकता, कि अगर हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तब हमारे पास स्मॉल ए आ ही नहीं सकता. स्मॉल ए एक ही कंडीशन में आएगा जब दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए. तो यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी कि जब अफेक्टेड चाइल्ड आया है वो रिसेसिव करेक्टर है तो स्मॉल ही आएंगे दोनों. अब जब चाइल्ड रिसेसिव आ रहा है, अफेक्टेड चाइल्ड दिख रहा है अगली जनरेशन में, तो दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे, तभी ये अफेक्टेड बनेगा. ये हुआ थर्ड चाइल्ड, आपको पता लग गया. अब फोर्थ चाइल्ड में देखिए, फोर्थ चाइल्ड में यहाँ पर अगेन ये रिसेसिव है और नेक्स्ट जनरेशन में ये करेक्टर शो हो रहा है. तो यहाँ पर रिसेसिव है, अगले में शो हो रहा है, तो इट मीन्स दैट विल बी अगेन एक्टिंग एज अ कैरियर. तो यहाँ पर आपने दोबारा से उसको क्या ले लिया, एज अ कैरियर ले लिया. ओके, और अगर आप इन दोनों को भी क्रॉस करा कर देखोगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं. तो कैपिटल ए स्मॉल ए इज़ देयर, सो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड हेयर. ओके, आई होप आपको पेडिग्री के ये सभी एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए हैं. ओके, थैंक यू. इन केस आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे. दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड द वेरियस एग्जाम्पल्स. थैंक यू.